Hello everyone, welcome to Maneuver. This is a series for the TIS 2024, those who are preparing for the TIS NET 2024 guys. So here I am started the series and this is the part 2. In this part I will discuss about the current affairs from the March month, because you know the 1 year current affairs is important, and in a previous part 1 I already discussed about the strategy part. It means as per general awareness section how many month current affairs is important, and as a static GK, what are the static GK is important, as well as everything. So I will suggest just watch this part 1. Here you can see on our YouTube channel. So first see the part 1, because all the strategy is there, and after that you can follow this continuous series part 2, and then upcoming part I will also discuss about the some static area, for example like books and writers related questions and important personality related questions, some history and geography related questions. So in each part you will see something new which is very exams oriented information. So in part 2 I will discuss about the March month, because 1 year current affairs is important. If I will so most of the time student are asking कि कितने month का current affairs basically important होता है. तो देखो for example if your exam will be held in Feb month, okay, so if exam will be held in Feb month, so देखो major question जो आएंगे, और यही सारा ट्रेंड फॉलो हो रहा है लास्ट 3, 4, 5 ईयर से. So जो आपको I can say 10 to 11 questions will be from the last three months. It means from the Jan, from December, from November. So from these previous 3 months, it means if your exam will be held February 2024, so आपको January 2024, December 2023 and November 2023 से major question होंगे, and then 3 more previous month if you will see. So from here 7 to 8 question की possibility होगी. Similarly 1 more 3 month if you will say, so 4 to 5 question, and last 1 year it means last के जो I can say 1 year के question last it means after 9 month जो 3 मंथ होंगे वहां से आपको हार्डली 2 to 3 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होंगी, एंड लास्ट 2 ईयर से नियर बाई 25 क्वेश्चन का जो वेटेज है जनरल अवेयरनेस सेक्शन का. सो उसके अकॉर्डिंग ये बेसिकली एनालिसिस है. सो लास्ट 1 ईयर इफ आई विल सजेस्ट कि मार्च, अप्रैल एंड मे, फ्रॉम दीज मंथ से आपको 2 to 3 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होगी. एज पर द एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन जो टिस ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन है, एंड जो मोस्टली टिस एग्जाम्स में जिस एरिया से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं उसी एरिया पर बेसिकली हम फोकस करेंगे. 20 to 23 क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन को बेसिकली इस पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा, देन यू विल गेट द आइडिया. बट आई विल सजेस्ट कि अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, एंड 1 by 1 करके मंथ को अच्छे से स्टडी करते जाओगे, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द करंट अफेयर्स एज वेल एज एक्सटेम्पल सेशन, जो बाद में आफ्टर क्लियरिंग द फर्स्ट जो आपका प्री एग्जाम्स होता है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है एक्सटेम्पल सेशन के लिए भी बेनिफिशियल होता है कि इफ यू आर अवेयर अबाउट द करंट अफेयर्स रिलेटेड इश्यूज, इंफॉर्मेशन, सारी चीजें अपडेट हैं. तो विल सजेस्ट कि 1 ईयर्स का आप अपडेट करके रखो, और एज पर द मंथ वाइज मैंने वेटेज बता दिया, तो उस हिसाब से आपको फोकस करना रहेगा. सो बेसिकली यहाँ पे जो मैं मार्च मंथ से स्टार्ट कर रहा हूं, ये आप इसको अच्छे से देखते जाना, एंड उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते रहना. सम स्टैटिक क्वेश्चन से रिलेट करके भी मैं इंफॉर्मेशन डिस्कस करते रहूंगा. सो दैट इज ऑल्सो हाईली बेनिफिशियल. नोबेल प्राइज रहेगा, बुक्स एंड राइटर, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, साइंस एंड टेक, एवरीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द टेस्ट एग्जाम. सो जो भी सीरियसली प्लान करें 2024 के लिए टारगेट करें, 2025 के लिए और टारगेट करें, दे कैन जॉइन अस फॉर द लाइव क्लास एंड क्लासरूम प्रोग्राम्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो. इफ यू आर नियर, इफ यू आर मुंबई बेस्ड एंड नियर बिलोंग टू नियर बाई दीज लोकेशन, Borivali, Vasai, Thane, Dadar, so you can join and inquire for the classroom program. Numbers are given here. And if you're out of Mumbai and interested for the live class, so live class के लिए inquire कर सकते हो. You can contact on this number 8828581455. Our counselor will guide you and will clear everything, your all the doubt related to preparation and exams, everything. Okay, or you can visit maneuveredu.com/tisentrance. Now see the most important current affairs which is from the March month. So Belarus jail Nobel Peace Prize winner Alen Bialysky for the 10 years. So basically मैं यहाँ पे हेडिंग आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, इस पे किस टाइप का क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, एज वेल एज अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है. ये कंटेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको आप डाउनलोड कर लेना मंथ वाइज, एंड वॉट एवर जो भी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्कस करूंगा सारे कंटेंट मिल जाएंगे. सो इसको आप कलेक्ट करके रखो और रिवाइज कर लेना. तो इन्हीं से रिलेट करके बेसिकली क्वेश्चंस मोस्टली पॉसिबल है एग्जाम में फॉर्म होने का. सो देखो बेलारूस जेल नोबेल पीस प्राइज विनर, सो ही इज अ रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज 2022 के रिसिपिएंट है नोबेल का पीस प्राइज, जिसमें 2 इंस्टीट्यूशन था एंड 1 इंडिविजुअल कैटेगरी में जिसमें इनको मिला. तो बेसिकली 3 पीपल
2 इंस्टीट्यूशन 1 पीपल को ये नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था इस ईयर 2022 का। सो नोबेल प्राइज से फ्रिक्वेंटली किस एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म होते हैं? सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्सनालिटी का एज पर करंट अफेयर्स मार्च मंथ करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बाय द वे हियर ऑल द डिटेल इज गिवन रिलेटेड टू बेलारूस, रिलेटेड टू नोबेल प्राइज एंड रिलेटेड टू दिस पर्सनालिटी। यू कैन रीड इट एंड आफ्टर डाउनलोड। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडोनेशिया माउंट मेरापी वैल्कनो इरप्ट covering the village in As. So see here is a one volcano is a part of current affairs. So volcano, cyclone, earthquake, whatever, if such type of the natural disaster or whatever event, if it is a part of the current affairs, so exams में मैंने 2-3 years से देखा ऐसे क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं. So just you have to remember this volcano belong to which country? So Indonesia से belong करता है and because of eruption it is a part of the current affairs. ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, कर्नाटका बीट मेघालय 3-2 क्लींस द संतोष ट्रॉफी फुटबॉल आफ्टर 54 ईयर्स। सो देखो आफ्टर 54 ईयर हियर कर्नाटका डिफीटेड मेघालय। सो हियर इज अ 2 टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज पॉसिबल। अगर से करंट अफेयर से पूछा तो कर्नाटका, जो कि काफी कम चांस होगा। बाय द वे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है जो संतोष ट्रॉफी, सिंपली क्वेश्चन विल आस्क संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, कौन सी स्पोर्ट से रिलेट करके है? सो फुटबॉल रिमेंबर रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफी रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन। सो संतोष ट्रॉफी इट्स रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? फुटबॉल। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द विनर स्टेट? सो कर्नाटका स्टेट। ओके, now see the next stadium named after hockey star Rani Rampal, first woman to get this honor, very and highly expected। मतलब लास्ट 1 ईयर तक इस इंफॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस रहने वाला है। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट वुमेन है, सी द फर्स्ट वुमेन स्पोर्ट पर्सनालिटी। सो इनके नाम पे जो स्टेडियम का नाम रखा गया है, तो दैट्स वाई फर्स्ट वुमेन के नाम पे है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी एक्सपेक्टेड हो जाएगा एग्जाम्स के लिए। सो स्टेडियम कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के रायबरेली जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे है। बाय द वे रानी रामपाल, सी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? सी इज रिलेटेड टू हॉकी, वेल नोन हॉकी प्लेयर है इंडिया के। इनके नाम पे जो स्टेडियम रखा गया है रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ है। कहां पे, कौन से स्टेट में? उत्तर प्रदेश रायबरेली डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो इतना रिमेंबर रखना। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है, इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइन लोन एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन 4 स्टेट। सो देखो यहाँ पे टू इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, एक तो इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक। व्हाट इज द नेम ऑफ द 2 पार्ट्स? तो एक तो इंडिया दे देगा और ऐसे ही क्वेश्चन फॉर्म होगा, इंडिया एंड डैश दे देगा, साइन द लोन एग्रीमेंट कंस्ट्रक्शन ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन 4 स्टेट। अदरवाइज 4 स्टेट का नाम दे देगा, विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट? सो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। हो सकता है पॉसिबल ऐसा क्वेश्चन फॉर्म कर दे कि इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइन एन एग्रीमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर फॉर 4 स्टेट, विच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट। ओके, तो इसमें से कोई एक एडिशनल दे देगा। अदरवाइज विच वन इज अ पार्ट ऑफ दैट, तो 3 स्टेट के नाम दे देगा और उसमें एक इसमें से जो भी बिलोंग करता रहेगा वो दे देगा। तो क्वेश्चन किसी वे में भी फॉर्म हो सकता है, आपको इंफॉर्मेशन कंप्लीट पता होना चाहिए। ओके, सो इस इंफॉर्मेशन को रिमेंबर कर लो। नेक्स्ट है जिनपिंग इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द चाइना फॉर द 3rd 5 ईयर। देखो यहां पे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीधा यही हेडलाइन फॉर्म होगी, जिनपिंग इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द चाइना फॉर, यहां पे 3rd 4th 5th 2nd व्हाटएवर, इस तरह से इंफॉर्मेशन आएगा। तो काफी हाईलाइटेड न्यूज है, इंटरनेशनल न्यूज से एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। सो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सो जस्ट रिमेंबर इज द 3rd 5 ईयर टर्म्स के लिए इलेक्ट हुए हैं जिनपिंग। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, मीराबाई चानू वेटलिफ्टर इन बीबीसी इंडिया इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। दिस इज ऑल्सो वेरी हाईलाइटेड क्वेश्चन, सो मोस्टली एक्सपेक्टेड एग्जाम्स के लिए। सो मीराबाई चानू कौन से स्पोर्ट से रिलेट करके हैं? सी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? सो वेटलिफ्टर। कौन सा अवार्ड मिला? बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, सो इतना इंफॉर्मेशन एटलीस्ट आपको रखना है, अवार्ड एंड सी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? वेट लिफ्टिंग। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, द एलिफेंट विस्पर इमर्ज एज द विनर ऑफ 95th एकेडमी अवार्ड, मेकिंग इट मेडन विक्ट्री फॉर इंडिया इन डॉक्यूमेंट्री। So Oscar award is a very and highly expected for the TISS exam. Every alternate year you can see the question related to Oscar. तो इस ईयर काफी इंडियन मूवी जो बेस्ट सॉन्ग, डॉक्यूमेंट्री मूवी, इस सब सारे लिस्ट में काफी अवार्ड मिला है। तो इन सब से रिलेट करके फैक्ट रिमेंबर रखो। पॉसिबल है नेक्स्ट ईयर जो लेटेस्ट होगा उससे भी आएगा, बट इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि पास्ट ईयर से भी पूछ ले। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिमेंबर रखो कौन से एडिशन में 95th एकेडमी अवार्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्री मूवी, द एलिफेंट विस्पर, कौन सी कैटेगरी, सो डॉक्यूमेंट्री में। तो ये सब सारे फैक्ट बेसिकली किसी वे में क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पे, आलिया मीर फर्स्ट वुमेन वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर इन जम्मू एंड कश्मीर हॉनर्ड विद द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट वुमेन वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर है।
सो अगेन दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड वाइल्ड लाइफ इट मींस इन्वायरमेंट से रिलेट करके, तो ऐसे क्वेश्चन काफी फेवरेट होते हैं टेस्ट एग्जाम्स के लिए. सो रिमेंबर रखो इस पर्सनालिटी का नाम, वुमेन पर्सनालिटी का नाम आलिया मीर एंड सी बिलोंग टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? सो जम्मू एंड कश्मीर. ओके, सो हॉनर्ड विद द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड यहाँ पे मिला है. ओके, सो ये सारे फैक्ट हैं, जस्ट रिमेंबर. नेक्स्ट जो यहाँ पे एनजीओ फ्रॉम द आसाम हॉनर्ड विद द चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड, वेरी वेरी एंड ऑल्सो वेरी हाईलाइटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेगा. सो एनजीओ फ्रॉम द आसाम हॉनर्ड विद द चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड. So Assam based NGO care the special autistic children has won the Children Champion Award 2023. So setup 25 Tapoban has been working for the specially. So this is the name of the NGO. Okay, so ये सब सारे फैक्ट है. So Assam based NGO है Tapoban and received the Children Champion Award. Remember रखो. नेक्स्ट जो यहाँ पे रणवीर सिंह हैज सरपास द क्रिकेटर विराट कोहली टू बिकम द मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी ऑफ 2022. सो कंटिन्यू 4-5 ईयर से विराट कोहली वाज ऑन अ टॉप पोजीशन, बट इस ईयर चेंज हो गया. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिमेंबर है. सो रणवीर सिंह का नाम याद रखो, रणवीर सिंह, एंड एज पर दिस रिपोर्ट ही इज ऑन अ टॉप इन अ मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी. ओके, नेक्स्ट जो आपका एज गुड एज माई वर्ल्ड अ मेमोर ऑफ के.एम. चंद्रशेखर. सो दिस क्वेश्चन, दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बुक्स एंड राइटर. सो बुक्स एंड राइटर से वन क्वेश्चन आता है टीस एग्जाम में. सो हम स्टार्ट कर रहे हैं मार्च से, तो मार्च में जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एग्जाम्स के लिए हो सकता है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, तो एटलीस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट. ओके, सो नेम ऑफ द बुक एंड द नेम ऑफ द राइटर. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे गॉर्डन मूर इंटेल को फाउंडर डाई एट 94. सो यहाँ पे देखो इंटेल इज अ वेरी वेल नोन कंपनी विच इज फॉर द प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग. सो इंटेल का जो प्रोसेसर है काफी वेल नोन है पर्सनल कंप्यूटर के लिए. सो उसके को फाउंडर है, यहाँ पे इनका डेथ हो गया है. तो बेसिकली बिजनेस जी के एज वेल एज ऑबिचरी सेक्शन से काफी इंपॉर्टेंट है. सो जस्ट रिमेंबर गॉर्डन मूर एंड ही इज रिलेटेड टू विच कंपनी? सो इंटेल, ही इज अ को फाउंडर ऑफ इंटेल. नेक्स्ट जो यहाँ पे एसीएफ कॉन्फेयर द ग्रैंड मास्टर डी गुकेश विथ प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड. सो अगेन यहाँ पे प्लेयर का नाम एंड ही इज कॉन्फेयर्ड एज अ प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड. सो क्वेश्चन मे बी आस्क लाइक डी गुकेश एंड ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? सो ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? चेस. एंड simply the question may be asked like this: what is the name of the chess player who received the player of the year award which is conferred by the ACF, so Asian Chess Federation. So just remember D Gukesh. Okay, so award, personality, sports section point of view से important है. Next जो यहाँ पे important news है from the March month, मैरी कॉम फरहान अख्तर नेम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023. सो यहाँ पे देखो दोनों पर्सनालिटी काफी वेल नोन पर्सनालिटी है, मैरी कॉम एंड फरहान अख्तर, दोनों को ब्रांड एम्बेसडर फॉर द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप विच इज हेल्ड इन India in New Delhi. Here you can see IBA Women World Boxing Championship 2023 will be held in India from the March 15 to 26 in at the Indira Gandhi Sports Complex in New Delhi. काफी अच्छा परफॉर्म किया इंडिया के बॉक्सर, जो कि स्पेशली जो वुमेन बॉक्सर है निकहत जरीन है और एक गंगास करके है. तो ये इन सबने गोल्ड मेडल विन किया है. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो एक इंटरनेशनल इवेंट है, यहाँ पे दोनों वेल नोन पर्सनालिटी को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है. सो जस्ट रिमेंबर रखो. नेक्स्ट है यहाँ पे सुरेखा यादव, एशिया फर्स्ट वुमेन लोको पायलट हु नाउ ऑपरेट द वंदे भारत. सो देखो यहाँ पे भी है फर्स्ट वुमेन, एशियाज फर्स्ट वुमेन लोको पायलट, नाउ सी विल ऑपरेट द वंदे भारत. तो अगेन एक न्यू रिकॉर्ड है एंड सी इज अ वुमेन, फर्स्ट वुमेन है एशिया में. सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. सो जस्ट रिमेंबर हर नेम सुरेखा यादव. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इसरो रिसीव द इंडो यूएस जॉइंटली डेवलप्ड निसार सैटेलाइट. सो निसार का फुल फॉर्म ही याद रखना, इसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है. सो निसार इट मींस नासा इंडिया synthetic aperture radar. Okay, so basically this radar is for what? Earth observation satellite is being jointly developed by the National Aeronautics and Space Administration NASA and the Indian Space Research Organization ISRO. Okay, NISAR will be provide the wealth of data information about the Earth's surface. So these things will be the feature of this satellite. Basically this is a joint program of NASA and ISRO. So इस सैटेलाइट का नाम रिमेंबर रखना, यही बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा. ओके, नेक्स्ट जो है आपका पीएम मोदी एंड शेख हसीना एंड सी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश टू लॉन्च द 377 करोड़ बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन. सो गाइस देखो यहाँ पे दिस इज आल्सो द फर्स्ट एवर क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन. सो सिंपली क्वेश्चन पूछेगा इंडिया एंड विच कंट्री साइन द एमओयू फॉर द
क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन. सो ऑप्शन दे देगा इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर रखो विद द बांग्लादेश, एंड दिस इज द फर्स्ट एवर क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन है, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, जयपुर टू गेट द इंडिया सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम नेम आफ्टर अनिल अग्रवाल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अभी रिसेंटली के एग्जाम में भी पूछा था कि जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, दैट इज नरेंद्र मोदी स्टेडियम. इट्स लोकेटेड इन एट अहमदाबाद. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, यहाँ पे एक सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है जो इंडिया का है, एंड इसका नाम अनिल अग्रवाल रखा गया है. सो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है विच इज पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स. सो रिमेंबर रखो कहां पे है, जयपुर में है. इसका नाम क्या है, अनिल अग्रवाल है. ओके, सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है. सो ये सब सारे फैक्ट होते हैं, इन्हीं पे किसी न किसी वे में क्वेश्चन बेसिकली फॉर्म हो जाएगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ऑस्कर 2023 RRR क्रिएट द हिस्ट्री, नातू नातू विन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग. सबको पता है इस न्यूज से रिलेट करके, बट ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ लेगा, सिंपली पूछ लेगा इन विच कैटेगरी. देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस का टाइप भी फॉर्म कर दिया है कि किस टाइप का क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, कंप्लीट डिटेल दे देगा. एंड जहां पे एग्जामिनर को लगता है कि आप मिस कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को, तो वही इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ लेगा. तो रिमेंबर रखना 95th एकेडमी अवार्ड में इन्होंने ये प्राइज विन किया हुआ है. ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, आरबीआई शशिकांत दास नेम गवर्नर ऑफ द ईयर एट द सेंट्रल बैंक अवार्ड 2023. तो यहाँ पे जो हमारे शशिकांत दास है, गवर्नर ऑफ आरबीआई, इनको अवार्ड मिला है, ये द सेंट्रल गवर्नर ऑफ द ईयर एट द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. सो दिस विल बी ऑल्सो एक्सपेक्टेड फॉर योर एग्जाम. सो सिंपली क्वेश्चन देखो, यहाँ पे स्टैटिक ओरिएंटेड भी फॉर्म हो सकता है. शशिकांत दास इज सर्विंग एज द इट मीन्स कौन से नंबर के गवर्नर है, सो 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई, रिमेंबर रखना. ओके, सो यहां पे अवार्ड भी पूछा जा सकता है या फिर इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है. नेक्स्ट जो है आपका, फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया रैंक 126 इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट. सो देखो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है. यहाँ पे जो कंट्री टॉप पे है वो क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, तो फिनलैंड का नाम रिमेंबर रखो. Rank of India is also very important. So 126 in this report, 126. And if you will see here, Denmark at the second number, Iceland on the third number. So place on the fast growing economy was placed number 126 in the report below the national. Nepal, China, Bangladesh and Sri Lanka. In सबसे भी नीचे है India. That is not a good sign as per the report. So question जो फॉर्म हो सकता है possible, what is the India rank in the World Happiness Report 2023. So ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम्स में क्वेश्चन फॉर्म भी होता है. नेक्स्ट है यहाँ पे, अर्जेंटीना मैथमेटिशियन लुइस कैफरेली विन द 2023 एबेल प्राइज. देखो सिंपली एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म होता है, एबेल प्राइज इट्स रिलेटेड टू विच फील्ड, कौन से फील्ड से रिलेटेड है, अदरवाइज व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सनालिटी हु इज अ रिसिपिएंट ऑफ पर्टिकुलर ईयर. सो 2023 के लिए नाम पूछ लिया, तो लुइस कैफरेली. And Abel Prize it's given in the mathematics field. याद रखना mathematics. So Argentina born mathematician Luis Cafarelli has won the 2023 Abel Prize, one of the most coveted award in mathematics. So इसको Nobel Prize भी बोल सकते हैं mathematics field का. So Abel Prize कौन से field से related है, mathematics. So ये सब सारे, so these all are the important current affairs जो मार्च मंथ से most expected हो सकता था, वो मैंने यहाँ पे फॉर्म किया. एकदम फिल्टर कंटेंट है, जो 1 ईयर तक की पॉसिबिलिटी होगी ये सब सारे क्वेश्चन का एग्जाम में फॉर्म होने का. कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि अपकमिंग 2-3 मंथ तक उनका इंपॉर्टेंस होता है, बट यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन मैंने कवर किए पूरे 1 ईयर तक इनका इंपॉर्टेंस रहेगा एग्जाम में, एंड पॉसिबल हो सकता है यहां से क्वेश्चन फॉर्म हो जाए. एंड आई विल सजेस्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट, एंड यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द करंट अफेयर्स. एंड स्टैटिक जी के पूरे 40 क्वेश्चन आते हैं, एंड कट ऑफ इज 14 मार्क्स, एटलीस्ट 14 मार्क्स तो होना चाहिए. सो इसके लिए आई विल सजेस्ट कि आप कंटिन्यू एक डेडिकेशन के साथ, एक राइट मटेरियल के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करके अभी से स्टार्ट करोगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल. एंड इफ यू विल join us for the program, so see here current affairs and static GK के लिए जो हमारा प्रोग्राम है basically that is a very highly relevant for the exams, and here I will show you. It means complete magazine मिलती है, monthly magazine, जो भी important current affairs होते हैं current affairs point of view से. see here करंट अफेयर्स से रिलेट करके जो मंथ वाइज सारे डेट वाइज आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं. यहां पे आप देख सकते हो कि पर डे वाइज जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है वो आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा. सो हियर यू कैन सी मंथ वाइज एज पर डिफरेंट एरिया वाइज you will see all the current affairs is there. It means banking and finance से relate करके whatever the important news is a part of current affairs, then obituary section, then national news, then international news, whatever जो भी होते हैं यहाँ पे मंथली मैगजीन आपको मिलेगा. एंड देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीकली करंट अफेयर्स.
In weekly current affairs, you will see as per the whatever the important news, जो भी important news है, उस news के basis पे किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं करंट अफेयर्स, as well as what are the static. Hello everyone, welcome to Miniverse weekly current affairs session. Oriented क्या क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, एवरीथिंग. इट मींस करंट अफेयर्स को स्टैटिक जीके से कनेक्ट करके हम इस वीकली करंट अफेयर्स में डिस्कस करते हैं. तो 1935 तो बेसिकली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सेक्शन अपडेट हो जाता है और मोस्टली एग्जाम्स में वैसे ही क्वेश्चन फॉर्म होते हैं जो करंट अफेयर्स का पार्ट होते हैं, उन्हीं से रिलेट करके स्टैटिक जीके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं. ओके, सो इस वे में इसको डिजाइन किया गया वीकली बेसिस पे. अगर आप इसको केयरफुली देखते हो तो यहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ आपका स्टैटिक जीके जो कि पॉसिबल होता है एग्जाम्स में फॉर्म होने का, वो भी अपडेट हो जाता है. एज वेल एज स्टैटिक जीके के लिए हियर यू कैन सी द वीडियो लेक्चर्स आर देयर विच इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड ग्राफिकल व्यू में है, जहां पे इंफॉर्मेशन के साथ साथ ग्राफिकल इमेज के साथ सारे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो कि काफी इजी होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए एंड रिलेटेड फैक्ट को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो. हियर यू कैन से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, व्हाटएवर जो भी स्टैटिक का पूरा सिलेबस है, सारे सेक्शन के इंफॉर्मेटिव वीडियो यू विल गेट फॉर योर प्रिपरेशन. सो इन दिस वे इफ यू विल प्रिपेयर एज वेल एज जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज देयर. इट मींस इंटायर प्रिपरेशन काफी इजी वे में हो जाता है. तो जो भी टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए 2024 एंड 2025 के लिए, सो दे कैन ज्वाइन आवर प्रोग्राम. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर द लाइव क्लास, तो लाइव क्लास, अदरवाइज आप मुंबई बेस्ड हो तो क्लासरूम्स के लिए एज पर योर इंटरेस्ट यू कैन ज्वाइन अस एंड यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 8828581455 फॉर द ऑनलाइन इंक्वायरी, एनी डाउट, एनी क्वेरी, आवर काउंसलर विल गाइड यू. एंड फॉर द क्लासरूम के लिए यू कैन कॉल ऑन these number, so Borivali, Vasai, Dadar and Thane. And don't forget to subscribe because here you will get all the updates related to exams as well as for your preparations. You can follow us on social media where you will get the latest update related to your preparations. And don't forget to download this content. And you can download this content from the description, link is given. So ये आपको monthly current affairs मिल जाएगा. After that, when I will discuss about the static GK, that content also you will get for your preparations. So just wait for the third part. Till the time, just prepare and revise. Jai Hind.